Assalamu alaikum, guys. First of all, I introduce myself. My name is Mohammad Mohsin Raza, and I am a lecturer and serving in the Government Boys Degree College Samaro. And I'm connected with this channel. The channel name is Physics Vertex Lab. First of all, today I teach you or introduce or give a warm introduction about my subject, which is named as biology. First of all, I'm starting in the name of Almighty Allah, who is most beneficent and ever merciful. Today, my topic is I give the introduction about the MDCAD curriculum of biology, and I'll explain you or I'll define you some important contents which will come in the MDCAD paper. First of all, biology, the study of living organism, and it is one of the most important subject which is the part of the MDCAD. It is also be known as the most important part of the MDCAD because the biology subject related 80 MCQs will come in this test. Medical dental colleges admission test. It is actually an entrance test when we want to get admission in the medical university. So first of all, we give the MDCAD test in which the 80 MCQs will come of the biology subject. Now the curriculum of the biology subject contain these 16 successive contents or 16 particular chapters which will come in this test, and their names are a cellular life, bioenergetics, biological molecule, cell structure and function, coordination and control, enzymes, evolution, reproduction, support and movement, inheritance, circulation, immunity, respiration, digestion, homeostasis and biotechnology. Now I define one by one. First of all, the first main content is a cellular life. It is a particular chapter in which we cover the acellular life, means the life which we cannot be said as a life. It is a borderline between the living and नॉन लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर के अंदर हम उन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हकीकत में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और ना ही हम इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं बिकॉज इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड. एंड acellular life are actually the viruses, and you already know about it that viruses are the venomous creatures or venomous structures or venom based structures which damage or destroy the life of human beings or other living organism. In this content we also cover the viruses discovery, structure and its life cycles and its we can say that कि वो जो अटैक करता है ये वायरस, उसकी जो कंप्लीट साइकिल होती है उसको हम कवर करेंगे. और इसके अलावा भी कुछ सक्सेसिव टॉपिक जस्ट लाइक दैट HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उस पर हमारा जो है वो काफी रुझान होगा. Now the second one topic is, or the second one content is bioenergetics. Now what is bioenergetics? Bioenergetics is a process in which the energy is produced in the living organism, either in the plants or in the animal. Now you should know that plants are the living organism which are autotrophic in nature, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो मेथड है, हम ये कहें कि जो फंक्शन या एक वर्ड जो एनिमल्स के अंदर है वो है रेस्पिरेशन. Now the respiration in the animals and photosynthesis in the plants we actually cover in this content. The third one content we have is biological molecules. Now the biological molecules are most important and it is more it can be said to be as the most important content of the MDCAD MCQs because in the biological molecules we cover the different molecules, especially the 4 molecules which constitute the living organism on this earth, and their names are proteins, carbohydrate, lipids and nucleic acid. These are the 4 important biological molecules, and we cover the structure, function, their actions, their roles and how they constitute the body of the living organism. We actually cover about these 4 important molecules and also the water in the biological molecule.
Now the fourth one content is cell structure and function. In this content we cover the whole scenario of the cell, and you know that what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of the life. यानी ये एक ऐसी बुनियादी इकाई है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत है, जो उसका स्टार्टअप है, द स्टार्टअप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, बिकॉज इट्स a basic structural and functional unit of the life. तो इस स्ट्रक्चर यानी ये जो सेल है, इसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट किस्म के पार्ट्स विच आर नोन एज ऑर्गेनेल्स, वो या सेल का स्ट्रक्चर्स, सेल के फंक्शंस इन द डिटेल वी कवर इन दिस कंटेंट. नाउ इन द फिफ्थ वन कंटेंट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन एंड control. Acha, you know that many living organisms are also present in this world which are very complex structure. Their body are very complex. So in the complex body, the God make this system as well. The coordination and control means एक ऐसा system जो कि हमारे different organ systems को एक दूसरे के साथ correlate करता है, ताकि हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटली अपने वर्क्स को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें और उसकी मदद से एक मल्टीपर्पज लाइफ का जन्म हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें देखने को मिलता है उनमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स एक ही पर्टिकुलर लाइफ के अंदर परफॉर्म होंगे, तो उनको परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक कंट्रोल चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए, एक मेन पावर्ड स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इस पूरी बॉडी को, इन तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल कर सके, उनके फंक्शंस को कवर कर सके, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, उनके डिफरेंट किस्म के जो रोल्स हैं उनको कंट्रोल कर सके. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? Coordination and control. It is also the part of our curriculum, and in this we cover the whole coordination of the body. Specifically in this content we cover the nervous system, the structures of the nervous system, the functions of the nervous system, the pros and cons of the nervous system as well. Now the next or sixth one content is enzyme. Simply, what are enzymes? Enzymes are the specialized proteinaceous molecules which are present in our body, and they are responsible to activate the chemical reaction. And they are not only activate the chemical reaction, but they also performs the successive chemical reactions at one platform, at one extent. जो कि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई गई है, तो इस कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, जस्ट लाइक दैट कि हमारे ब्लड की जो पीएच है वो आपको पता है 7.35 pH is of our blood. तो इसी pH और इसी टेम्परेचर के ऊपर तमाम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना, how it can be possible? Yes, it can be possible with the help of enzyme, because these are the special molecules. ये वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं. दूसरी बात यह है कि एंजाइम असल में वो प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, ताकि केमिकल रिएक्शन बहुत स्पीडली परफॉर्म हो सके. और अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीडली परफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू नेचर, तो उसको लेवल डाउन करना, यानी कि तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक एक्सटेंट पर, और खास तौर पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं खास इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक. अच्छा, इन दिस कंटेंट तो फिर हम उस एंजाइम के स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट किस्म के एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और अ सीरीज ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में मौजूद हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, खास तौर पर इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का स्ट्रक्चर, ये सब हम कवर करेंगे. द सेवेंथ वन कंटेंट इज इवोल्यूशन. अच्छा, इवोल्यूशन क्या है? व्हाट इज इवोल्यूशन? सिंपली द चेंज of the character, the changes which are occurring or which are creating in the living organism with the passage of the time when the environmental conditions changes, this is known as evolution. अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं कि evolution एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक खास एनवायरनमेंट पाया जाता है,
एक खास टेम्परेचर है, एक खास ह्यूमिडिटी है, वहां एक खास प्रेसिपिटेशन है, लैंड एरिया एक खास किस्म का है, वाटर की अवेलेबिलिटी एक खास किस्म की है। तो इस एरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इस एरिया के एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में इजीली रहते हैं। लेकिन अगर सडनली ऐसा हो जाए, सडनली नहीं तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब ये एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने लगे, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होने लगे, या प्रेसिपिटेशन चेंज होने लगे, या ह्यूमिडिटी चेंज होने लगे, या वाटर की अवेलेबिलिटी, समटाइम हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, ड्राउटिक कंडीशंस आ जाती हैं। तो जब वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अब ये एक न्यू एनवायरनमेंट है, जिस न्यू एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें सरवाइव करना है। न सिर्फ सरवाइव करना है बल्कि अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड भी करना है, इनटू ब्रीड भी करना है, डिफरेंट किस्म के सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस नए माहौल के लिए अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन्स कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आना माहौलियात के हिसाब से। दिस प्रोसेस, जब ये तब्दीली आ जाती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इवोल्यूशन। अच्छा, इसका एक रिवर्स है रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही स्पीडली आता है, लेकिन इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होता है। और इसकी मदद से अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। न्यू वन लिविंग ऑर्गेनिज्म या न्यू वन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, सिंपली हम ये कहें कि वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और इस प्रोसेस की जो डिटेलिंग है वो मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर बताई थी। अच्छा, इन दिस कंटेंट वी कवर द डिफरेंट एवोल्यूशंस ऑफ आवर अर्थ, कि हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के एवोल्यूशंस हुए हैं, या एवोल्यूशन की क्या वजह है, या उसकी क्या डिटेलिंग है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इस एवोल्यूशन के एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोसेस के अंदर। वी cover all these topic in this content. Now the eighth one content is reproduction. Simply, what is reproduction? The word re means again and production means बनना, यानी किसी भी living organism का again and again बनना, produce होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अफजाइश नस्ल होती है। क्या होती है? अफजाइश नस्ल, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। मींस के मेल और फीमेल, टू अपोजिट सेक्स जेंडर एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, और इंटरब्रीड करके ये एक न्यू प्रोजेनी को जनरेट करते हैं। उस ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा, इन दिस कंटेंट वी कवर द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स स्पेशली। हमने प्लांट के मुकाबले में एनिमल की जो रिप्रोडक्शन है उसको हमने डिटेलिंग में कवर करना है, कि उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली आई एम ट्राइंग टू से दैट एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन है वो हम इसमें कवर करेंगे। अब रिप्रोडक्शन तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं, या जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, या बॉडी का जो पार्ट इन्वॉल्व्ड है, या उसके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी डिटेलिंग, इनका रोल क्या है रिप्रोडक्शन के अंदर, वी कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस वन कंटेंट। नाउ द 9th one content is support and movement. It is also an important content of our curriculum. Now in the support and movement we actually trying to acknowledge about the supporting system in the living organism. सिंपल सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देकर बनाया गया है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मूव ऑन करने के लिए, स्पेशली उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यहां तक कि रन करने के लिए भी खास किस्म की सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। इवन दैट कि अगर हमारी बॉडी मूव भी कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टुवर्ड द अनदर प्लेस, या हम प्लांट की एग्जांपल ले लें कि एक ही जगह पर रहकर वो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट दिखाता है, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रोपिज्मिक मूवमेंट, थिग्मोट्रोपिज्म, सीज्मोट्रोपिज्म, और डिफरेंट किस्म की जो मूवमेंट्स प्लांट में एक ही जगह पर, हालांकि प्लांट एक सेसाइल बॉडी है लेकिन उसके बावजूद भी वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। या एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट सिस्टम है, या जो इनकी सपोर्टिव सिस्टम है, वो हम कवर करेंगे इस कंटेंट के अंदर। अच्छा, इन दिस कंटेंट we mostly cover the supportive system and the movement mechanism of the animals especially. Now
The 10th one content is inheritance. It is also the most we can say कि it is also the most important part of the curriculum, क्योंकि MDCAT के अंदर inheritance से related बहुत ज्यादा सवालात जो हैं वो previously भी बहुत ज्यादा सवालात inheritance से related आए हैं। पहले तो हम थोड़ा सा slight introduction समझते हैं कि inheritance क्या है। Simply, inheritance is a process in which the characters or traits of the living organism are transferred from their parents towards their progeny. This process is known as inheritance. असल में inheritance कहा जाता है विरासत के प्रोसेस को, विरासत के अमल को, जिसके अंदर माँ बाप से उनके बच्चों की तरफ जो कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं या ट्रेड्स या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो कैरेक्टर्स हों या ट्रेड्स हों जो के ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी की तरफ, इस प्रोसेस को हम कवर करते हैं इन द इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस के अंदर हमारा जो सबसे मेन फोकस है वो होता है क्रोमोसोम्स पर। अच्छा, क्रोमोसोम्स वो बॉडीज हैं जो कि जेनेटिकल मटेरियल कहलाती हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ को अपने अंदर कंटेन जो है वो सेव करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। एंड यू नो दैट जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए, या सिंपली वी कैन से सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज जीन। ठीक है, तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स और इसकी डिटेलिंग जो है वो हम इस कंटेंट के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम इसके अंदर जेनेटिक्स के बारे में भी कुछ डिटेल्स और काफी हद तक डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एंड यू नो दैट जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। ये वही जेनेटिकल मटेरियल है जो कि विरासत के तौर पर माँ बाप से उनके बच्चों की तरफ मुंतकिल होता है, और उसी जेनेटिक्स से रिलेटेड उसकी जो भी हिस्ट्री है और उनके अंदर जो लॉज ऑफ जेनेटिक्स, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिवनेस, ये सब चीजें हम जो है वो these all topics we cover under this one content which is named as inheritance. Now the circulation, अच्छा circulation एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर हमने जो है वो मूवमेंट पढ़नी है हमारे ब्लड की हमारी बॉडी के अंदर। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम गर्दिश देखते हैं अपने बॉडी के फ्लूइड्स की, चाहे वो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं। अच्छा, फ्लूइड आई एम ट्राइंग टू से कौन सा फ्लूइड, ये फ्लूइड है ब्लड, जो कि हमारी बॉडी का एक खास कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल्स बॉडी। ये ब्लड जब गर्दिश करता है, जब ये घूमता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो उसकी गर्दिश और उसकी रवानी का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, सर्कुलेशन इन दिस कंटेंट वी कवर द स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हमारा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब चीजें हम कवर करते हैं। और फिर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, उनका रोल, वो क्या मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक मल्टीपर्पज लाइफ है। तो इस मल्टीपर्पज लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को कनेक्ट करना, और सिंपली हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड आता है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ। तो इस हवाले से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। The second one we have immunity. Simply, what is immunity? Immunity is the defensive system. It's a defensive mechanism of the human bodies as well as the plant bodies or the living organism bodies. अब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस एनवायरनमेंट के सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं, एक्ट अपॉन होते हैं। तो जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी एक खास किस्म की कुव्वत मदाफात उसे अल्लाह ताला ने अता की है। वो कुव्वत मदाफात क्या करती है कि उसको उस तमाम इन्वायरमेंटल, स्पेशली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से उसको क्योर करती है, उसको बचाती है, उसका ख्याल रखती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि कुव्वत मदाफात का जो अमल है उसको हम क्या बोलते हैं, immunity. अच्छा, in this content we cover the whole defensive mechanism especially of the human body as well as the plants as well as the other animals, और मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम बनाया गया है उसकी डिटेलिंग, और इसके साथ साथ कनेक्टेड है लिम्फेटिक सिस्टम जो कि इम्यून के साथ कनेक्टेड लिम्फेटिक सिस्टम विच इज अ ड्रेनेज सिस्टम, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, 13 हमारा कंटेंट है रेस्पिरेशन। सिंपली व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकमिंग एंड आउटकमिंग ऑफ द एयर। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसको हम अमले तनफ्फुस या फिर सांस लेने का अमल कहते हैं।
यानी एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट की जो एयर है, जिसके अंदर एक खास इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका नाम है ऑक्सीजन, वो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को हम जो है वो अपने अंदर इनहेल करते हैं और फिर इस मॉलिक्यूल की मदद से हम अपनी बॉडी की जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउनिंग करके एनर्जी को इमिट करवाते हैं। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम जो है वो क्या पढ़ते हैं, सांस, जिसको हम सांस लेने का अमल कहते हैं, ये उसमें हवा का अंदर आना, हवा का बाहर जाना और उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स उसमें इंस्टॉल किए गए, खासतौर पर हमारी नोज या नॉस्ट्रिल से, या फिर ये जो हमारा है क्या बोलते हैं लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन लंग्स। तो इसका पूरा जो निजाम है, स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन में। नाउ द 14th one is digestion. It is also an important topic of our curriculum of biology. Digestion. अच्छा, it is also my favorite topic, digestion. What is digestion? Digestion, इसको हम पहली बात तो ये कि उर्दू में हम इसको कहते हैं अमले इन्हेजाम, यानी कौन सा अमल, इन्हेजाम का अमल या हजम करने का जो अमल है या उसका जो निजाम है, निजाम इन्हेजाम, हजम करने का निजाम, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। अच्छा, ये भी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन या फूड हम इनटेक करते हैं उस न्यूट्रिशन, उस फूड को डाइजेस्ट करना, उसको जो हम डाइजेस्ट करते हैं वो हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, डाइजेशन के थ्रू। अच्छा, इन दिस कंटेंट वी कवर द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच अवर माउथ, esophagus, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas, rectum and many organs which are connected in this digestive system we cover in this कंटेंट। और कुछ और भी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स के, न सिर्फ खाली ह्यूमन के बल्कि अदर एनिमल्स के भी हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इसमें कवर करेंगे। नाउ द 5th वन टॉपिक इज होम्योस्टैसिस। 5th वन कंटेंट हमारा होम्योस्टैसिस है। वेरी सिंपल, हम उसके लफ्ज से समझ सकते हैं। द वर्ड होम्यो मीन्स सेम एंड स्टैसिस मीन्स टू स्टे, यानी कि जब हमारी बॉडी पर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्ट करते हैं या उनका अफेक्शन जब हमारी बॉडी के ऊपर होता है और हमारी बॉडी के अंदर वो अफेक्शन सर्टेन किस्म के चेंजेस पैदा करता है, तो उन चेंजेस को कंट्रोल करना ताकि हमारी बॉडी स्पेशली इंटरनली वो एक लेवल्ड एनवायरनमेंट पर रह सके और ना तो वो उस लेवल्ड से ऊपर जाए ना ही वो नीचे आए, क्योंकि हमारी बॉडी को इंटरनली तौर पर अल्लाह ताला ने एक खास इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट किया है। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे इस इंटरनल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, उसे उसको उसके अंदर सर्टेन चेंजेस पैदा करता है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के चेंजेस हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। उन चेंजेस को रोकना या उन चेंजेस को वापस से उसी स्टेडी स्टेट पर, उसी स्टेडी लेवल पर लेकर आना किसका काम है, होम्योस्टैसिस का। अच्छा, इन दिस कंटेंट वी कवर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस व्हिच इज ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें हम 3 टॉपिक्स को मेजरली कवर करेंगे, जिसमें हमारा ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि हमारे पानी का निजाम, हमारी बॉडी में जो पानी आता है या उस पानी की जो कवरेज है उसको कवर कैसे करना है, कितना पानी हमारी बॉडी में होना चाहिए, फला फला, ये सब चीज हम ऑस्मोरेगुलेशन में कवर करेंगे। थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर तो बार बार चेंज होता है और वो फिर अफेक्ट करता है बॉडी पर, लेकिन बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर जो कि ह्यूमन बॉडी का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी भी हम जो है वो उसका ले सकते हैं बर्ड का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लांट का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसी इंटरनल टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना होता है। वो चीज भी हम होम्योस्टैसिस में कवर करेंगे। और एक्सक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारी बॉडी में मटेरियल बच जाता है जिसका स्टोरिंग यानी अगर उसको स्टोर किया जाए तो फिर वो जो है वो डेंजरस साबित होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, स्पेल आउट करते हैं, तो उसके प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इन 3 प्रोसेस को मेजरली हमने इस कंटेंट में कवर करना है। अब आते हैं हमारा लास्ट वन कंटेंट, बायोटेक्नोलॉजी। ये बता दिया जाए कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे बायोलॉजी करिकुलम ऑफ एमडीकेट का। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सिंपली द वर्ड बायो मींस लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मींस द यूज ऑफ टेक्निक्स, यानी कि जब हम किसी भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन मैनकाइंडनेस के लिए जब हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन टेक्निक्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, बायो टेक्नोलॉजी। अच्छा, सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं कि इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ जीन, यानी कि ये जो हमारी जीन है जो कि हमने इनहेरिटेंस में कवर करना है। अच्छा, जीन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ अ हेरिडिटी और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिकल मटेरियल। और जीन की हकीकत क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का खास किस्म का सेगमेंट जिसमें एक खास कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। उस जीन के अंदर हम तब्दीलियां लेकर आते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग या फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड। तो उसको भी हम किस में कवर करते हैं? बायो टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इन पूरे वैसे तो हमारा ये जो बायोलॉजी का करिकुलम है, स्पेशली द करिकुलम ऑफ 2026 ऑफ MDCAT, in the biology there are 16 specific contents or 16 specific chapters which are included in this MDCAT curriculum। लेकिन इनके अंदर से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हम खसूसी तौर पर तवज्जो देंगे, स्पेसिफिकली तौर पर हम उसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। वो है हमारे बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर से एमसीक्यूज के बनने की संभावना ज्यादा होती है। उसके अलावा हमारा स्पेशली इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और ये जितने भी सिस्टम्स स्पेसिफिकली जो सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं उनके अंदर से भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अंदर से समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, समटाइम्स जो है वो कुछ नॉर्मल्स होते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे इस कंटेंट के अंदर से बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।